Hello friends, welcome in Parasham video lecture. Today we will study social science. Standard 7th, semester 2, chapter 1. इस चैप्टर में गुजरात की बात की गई है। मध्ययुगीन गुजरात। ये एक पिक्चर दिखाई दे रहा है हमको। ये पिक्चर पाटन का पटोड़ा का है। A man roamed about a village street playing a song on his Ravanatha. A group of small children was also roaming along with him. He continued to sing the same song repeatedly, the words of which were છેલ્લાજી રે પાટણથી પટોળા મૂંઘા લાવજો. एक कलाकार आज गांव में रावणथ था, यानी कि एक वायोलिन आता है, वो उसके हाथ में ऐसे बजाते हुए गीत गाते हुए गांव में घूम रहा था. बच्चों की टोली भी उसके साथ घूम रही थी. यह कलाकार बार बार एक ही गीत गाता था. उस गीत के बोल थे છેલ્લાજી રે પાટણથી પટોળા મૂંઘા લાવજો. Among the children who sang along with the singer was Pratik. When he returned home, he asked his grandfather about the Patoda of Patan. Pratik's grandfather had a wealth of historical anecdotes. While telling Pratik about Patoda, he informed him about the historical city अणहिलवाड़ पाटन. नन्हा प्रतीक घर पर आया. उसने अपने दादाजी से पाटन के पटोड़े के बारे में पूछा. प्रतीक के दादाजी के पास हिस्टोरिकल स्टोरीज का खजाना था. उन्होंने पटोड़े की विधिवत जानकारी देते हुए हिस्टोरिकल जो है वो अणहिलवाड़ पाटन के बारे में उन्होंने बताया. In the Medieval Age, 746 CE to 1304 CE, approximately for about 560 years ago, the Chavda, the Solanki, the Waghela dynasty ruled over Gujarat. During their reign, the capital of their kingdom was Anhilpur Patan, which later came to known as Anhilwad Patan. Currently, Anawad village that is situated to the west of Patan was originally known as Anhilwad. मध्यकाल में ईस्वी सन 746 से लेके 1304 यानी कि लगभग 560 बरस तक गुजरात में चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, वाघेला डायनेस्टी के शासकों ने शासन किया. उनके शासन के दरमियान राज्य की राजधानी अणहिलपुर पाटन थी, जो अणहिलवाड़ पाटन के रूप में भी जाना जाता था. करंटली यानी कि अभी जो रिसेंटली है, पाटन के पश्चिम में अन्नावाड़ गांव ही अणहिलवाड़ था. अकॉर्डिंग द हिस्टोरिकल टेक्स्ट, द चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचासर. इट्स रूलर जयशिखरी अटेन मार्टेडम इन अ वॉर. हिज सन वंडा चावड़ा recaptured his father's kingdom. In place of the ruined kingdom, he established a new kingdom on the banks of the river Saraswati, which was known as Anhilwad Patan. It is believed that his friend Anhil assisted him in acquiring the kingdom, and hence the territory was named Anhilwad Patan after him. The Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years. Thereafter, the Solanki dynasty ruled over Gujarat. हमारे पास जो हिस्टोरिकल बुक्स है, उनसे हमको पता चलता है कि पंचासर में चावड़ाओं का राज्य था. उनके शासक जयशिखरी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे. उनके बाद उनका सन वनराज चावड़ा ने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया. राज्य की जगह वनराज चावड़ा ने सरस्वती नदी के किनारे एक नया शहर बसाया, जिसे अणहिलवाड़ पाटन के रूप में जाना गया. ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने में मदद करने वाले मित्र अणहिल के नाम से शहर का नाम अणहिलवाड़ पाटन रखा था. चावड़ा वंश के शासकों ने लगभग 196 ईयर्स तक गुजरात पर शासन किया. उनके बाद सोलंकी वंश के शासक गुजरात की राज्य सत्ता पे आए. ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी,
Gujarat became very prosperous. The Rajput era saw Anhilwad Patan emerge as one of the most powerful kingdoms. The kings of this dynasty, Mulraj Solanki, Bhimdev Solanki, Siddharaj Jaisingh, Kumar Pal, were among the great rulers. सोलंकी वंश के शासनकाल में गुजरात में खूब ऐश्वर्य था। राजपूत युग में शक्तिशाली राज्य के रूप में सोलंकियों के अणहिलवाड़ पाटन की गणना होती थी। इस वंश के शासकों में मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल जैसे महान राजा थे। The famous scholar Sri Hemchandracharya was patronized during the rule of Siddharaj Jaisingh. During his reign, Anhilwad Patan became the main center of education and was known as Vidyadham. On his proposal, Sri Hemchandracharya wrote a book on grammar, Siddhem Shabdanushashan. After its completion, the book was placed on the seat tied on to an elephant, and the procession was carried throughout the city. Both the king Siddharaj Jaisingh and the composer Sri Hemchandracharya accompanied the procession on foot. It was the first time that a literary text was given such enormous respect. The prosperity of Gujarat reached its apex during the reign of Kumarpal. At this time, the amalgamation of non-violence, prosperity, and education was noticed in Anhilwad Patan. The kings of the Solanki dynasty were great rulers. However, 6 of these rulers renounced their thrones to become hermits. More information on this can be obtained from the library. सिद्धराज जैसे के समय में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य हुए। उनके समय में अणहिलवाड़ पाटन विद्याधाम बना था। सिद्धराज जैसे के आमंत्रण पर हेमचंद्राचार्य जी ने सिद्धहेम शब्दानुशासन नाम का ग्रामर बुक लिखा था। इस बुक की शोभा यात्रा हाथी की सवारी पर निकाली गई थी, जिसमें राजा और ग्रंथ के रचयिता प्रजाजनों के साथ साथ चलते थे। यह पहला प्रसंग था जब किसी साहित्यिक ग्रंथ का इतना सम्मान हुआ हो। कुमारपाल के शासक के समय गुजरात समृद्ध राज्य था। इस समय अणहिलवाड़ पाटन में अहिंसा, लक्ष्मी और सरस्वती का त्रिवेणी संगम देखने को मिला था। सोलंकी वंश के शासक महान राज्य करता थे। इस वंश के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 शासक राज सिंहासन त्याग कर मुकुटधारी से कंठाधारी बने थे। मतलब कि राजगद्दी छोड़ के सन्यासी हो गए थे। यहाँ पे ये बुक दिखाई दे रही है, वो है सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ। हेमचंद्राचार्य जी ने लिखा है इसको। यहाँ पे कुछ जानने जैसा है, तो फिर चलो जान लेते हैं। धर्मारण नामक ग्रंथ के अनुसार पाटन की स्थापना ईस्वी सन 746 में हुई थी। फिर नेक्स्ट लिखा है, हस्तलिखित एक राजवंशावली में पाटन की रचना ईस्वी सन 746 में हुई थी। वर्तमान पाटन में गणपति की पोल में स्थित गणपति की मूर्ति के नीचे के शिलालेख में पाटन का स्थापना काल लिखा हुआ है। उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है 746 CE। यहाँ पे पाटन एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था वो लिखा हुआ है। और अणहिलवाड़ पाटन हैड नॉट ओनली डायनेमिक किंग्स एंड एकेडमिक्स but the queens were also equally dynamic. अणहिलवाड़ पाटन की राजा और विद्वान महान थे, उसी प्रकार वहाँ की रानियां भी महान थी। In fact, Queen Udayamati built a chapel for the welfare of her subject. रानी उदयमती ने प्रजा के कल्याण के लिए सीढ़ीदार कुएं का निर्माण किया था।
This temple is known as Ran Ki Vav. This temple, consisting of 7 levels, is an unparalleled example of art and architecture. The beautifully carved stones idols tells us to the glory and prosperity of the Solanki era. Queen Minal Devi, King Siddharth Jayasing's mother, was much concerned about the welfare of the subjects and waved the pilgrim tax. The Malwa Lake at Dholka and the Mansar Lake at the Viramgam were constructed on her instructions. The Shastraling Lake of Patan was constructed during the reign of King Siddharth Jayasingh. रानी उदयमती ने प्रजा के कल्याण के लिए सीढ़ीदार कुएं का निर्माण किया था। यह कुआं रण की वाव के रूप में जाना गया। 7 मंजिलों में निर्मित यह कुआं कला और स्थापत्य का अद्भुत एग्जाम्पल है। कुएं में बनी पत्थर की कलात्मक मूर्तियां सोलंकी युग के वैभव का परिचय कराती है। राजमाता मिनल देवी भी सदा ही प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहती थी। सिद्धराज जयसिंह की माता राजमाता मिनल देवी ने राज्य से यात्रा कर बंद करवाया था। उनके कहने से दोलका में तालाब और विरमगाम में मुनसर तालाब का निर्माण किया गया था। सिद्धराज जयसिंह के शासनकाल के दरमियान पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण भी किया गया था। चैप्टर नंबर 1 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा, बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ।